Assalamu alaikum dear students. आज हम लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस सीरीज का थर्ड एंड लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, which includes the responsible leadership series. Along with that, we will be discussing what is trust and how trust in leadership matters, and then another form of leadership counseling, that is mentoring. So वो भी हम discuss करेंगे. So let's start with the responsible leadership theories. Responsible leadership theory में सबसे पहले authentic leadership आती है. Authentic leadership है क्या? Authentic leader वो leader होता है जो कि self aware होता है, who know who he is and what are who are his followers. उसको जो follow करने वाले वो कौन है. So the initial thing is self awareness and the awareness of about the group are the followers, and then uh, who know what they believe in and how they value it. जो उसके बिलीव सिस्टम है क्या वो उसको जानता है, और जानने के साथ साथ क्या उसको वैल्यू भी करता है या नहीं. And that is another is act on those value and beliefs openly and candidly. अब जो बिलीफ सिस्टम है जो कि लीडर होल्ड करता है उसके फॉलोअर्स का है, उनको क्या उस पर एक्ट भी करता है या इट इज जस्ट बिलीफ सिस्टम. If it is belief system properly, so it shall be acted upon. And then what we can say that the followers should consider them to be ethical people. अब अथेंटिक लीडरशिप के लिए ये ज्यादा है कि उसकी अथेंटिसिटी हो, कि क्या ये बंदा जो है विल बी डीलिंग मी प्रॉपरली with justice, procedural justice, interactional justice, and all those. Because a person is known to himself, और वो अपने फॉलोअर के बारे में भी जानता है, फॉलोअर्स के बारे में भी जानता है, then he shall uh, must know about the ethicality related to him. So it starts with the understanding of the purpose and lead with the heart. So यहाँ पे चूंकि leader has a vision, so that the vision shall be accomplished with an empathetic approach. So lead with heart and then demonstrate self discipline. अब इसके बाद उसने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है एज अ रोल मॉडल. लुक एट मी, आई एम डूइंग लाइक दैट, डू लाइक एज आई एम डूइंग. जो फैगमेलियन इफेक्ट की तरह या जो रीइंफोर्समेंट है वो इस तरह है कि अपने आप को रोल मॉडल पेश करे, डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ड्यूटीफुलनेस हो उसमें, and then can practice solid values. जो belief system वो hold करता है उसको practice भी करे. जो belief and value system वो hold करता है उसको practice भी करे, और उसको दिखाए भी कि it is not just there for mentioning but it is there for practicing, and at the end establish connected relationships. जो नीड फॉर बिलोंगनेस है, नीड फॉर रिलेटेडनेस है, ये सोशल नीड है, वो अपने फॉलोअर्स के पूरे करे, सेंसिटाइज हो अबाउट फॉलोअर्स बिलोंगिंग्स नीड्स. ये पांच चीजें हो तो वी कैन से कि दिस पर्सन हैज एन ऑथेंटिक लीडरशिप स्टाइल. दैट इज understanding the purpose, then leading his follower with the heart from empathetically, and then demonstrating himself as a role model and practicing the solid values, belief system, his and then at the end establish connected relationship. So the group, his follower is cohesive to him. And then comes the ethical leadership. Ethical leadership are those people who believe in fair things, okay? Procedural justice, they are a proponent of that, interactional justice, informational justice, and distributional justice. So such type of a leader can't do anything which is unethical. The leader who tend to have followers to engage in more OCVs. और फिर जब ऐसा लीडर होता है फिर वो कोशिश करता है कि वो उसके फॉलोअर भी ऐसे आ जाएं उसके पास जिनमें ओसीबी ज्यादा हो, एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर ज्यादा हो, बिकॉज he himself is an ethical person. Ethicality is of prime concern for him. So his followers shall be like that as well.
कि उनमें भी एथिकलिटी हो और उनमें भी एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर्स हो, एंड हु आर मोर विलिंग टू ब्रिंग प्रॉब्लम टू द लीडर्स अटेंशन। अब भी चाहता है कि क्योंकि आई एम एन एथिकल पर्सन, आई एम एन एथिकल लीडर now, and I'll be ethical in every instance and every situation. So bring the problems to me. I'll be trying my level best to solve it fairly and in a just way. Ethical and authentic leadership intersect at a number of junctions because these are most overlapping thing. Authentic में authentic leadership में authenticity create करने की कोशिश करता है leader जो है, authentic होने की कोशिश करता है। ethical में एथिकल लीडरशिप में वो अपनी एथिकलिटी स्टैंडर्ड्स को बताना चाहता है कि भाई आई एम अ मोस्ट एथिकल पर्सन, आई विल बी ट्राइंग टू डू थिंग्स फेयरली एंड इन अ जस्ट वे। So leaders who treat their followers ethically and authentically with fairness, especially by providing honest, frequent, and accurate information, are seen as more effective. अब एथिकल और अथेंटिक की हमने बात की, दे आर इंटरसेक्टिंग वन अनदर एट मैनी जंक्शन। सो उसकी वजह से जब ये फेयरनेस, ये परसीव्ड फेयरनेस होती है, इट इज परसीव्ड बाय द फॉलोअर्स दैट वी आर गोइंग टू बी डेल्ट फेयरली, तो फिर उनके आप जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, बोथ इंक्रीज। लाइक ऑन द साइड यू कैन से you can see that ethical leadership is about showing justice, builds community, serve others, and manifesting honesty and respect others. So ethicality में सबसे prime concern ही है, you must show that you are in compliance with the ethics of that organization, जहाँ जो भी ethical standard है, you are with that. एंड देन जो कि हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे, कंजंक्शन की बात कर रहे थे बिटवीन द एथिकल एंड द अथेंटिक, दैट इज लाइक बिल्ड कम्युनिटी। यहाँ पे भी इसने कम्युनिटी बिल्ड करनी है, वहाँ उसने अपने फॉलोअर्स को ग्रो करना है। सर्व अदर्स, यहाँ पे भी सर्विंग अदर्स है और वहाँ पे भी फॉलोअर्स के लिए होना है। एंड देन मैनिफेस्टिंग ऑनेस्टी। अब जहाँ पे अथेंटिक लीडरशिप में हमने देखा था कि प्रैक्टिस सॉलिड वैल्यूज, if the authentic leadership is holding values that should be practiced. तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि जो value system है, honesty is a value, so that value should be practiced, manifested by the leader, and respecting another value which shall be because self-respect is one of the core instrumental values, उसको जो है manifest करना है। Then comes the servant leadership. A leadership style marked by going beyond the leader's own self-interest and instead focusing on opportunities to help followers grow and develop. जो हम लीडर्स का हमने इनिशियली जब लीडरशिप की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, तो हमने कहा था कि इट्स एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू इन सच अ वे that they didn't do in that way if the person was not there for attainment of the certain goal. सर्वेंट लीडरशिप इसमें से क्या करता है कि वो अपने जात से बाहर निकल के उससे अपने जो जैसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल है अब्राहम मास्लो की थ्योरी का, वहां में पहुंच के अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बिल्कुल सप्रेस कर लेता है। रादर वो देखता है कि जो मेरे फॉलोअर्स है, व्हाट आर देयर नीड्स, उनके नीड्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इश्यूज क्या है, वो कैसे ग्रो कर सकेंगे, उनकी कैरियर प्रोग्रेशन कैसे होगी, कैरियर प्लान उनको बना के देता है और कैरियर प्लान को फॉलो करने की कोशिश करता है। सो सच अ साइड लीडरशिप जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट को वो अपना सप्रेस करके अपने फॉलोअर्स की नीड को देखता है, प्रॉब्लम्स को देखता है, एंड दे ट्राई कि वो ग्रो करे और डेवलप करे उनके फॉलोअर्स। So that sort of leadership is called servant leadership. A study of 126 CEOs found that servant leadership is negatively correlated with the trait of narcissism. Narcissism is the love with oneself, while servant leadership is about thinking others. So, as it reasonably, it is at odds with one another. Research also corroborate this reasoning कि सर्वेंट लीडरशिप और नार्सिसिज्म बिल्कुल एक दूसरे के नेगेटिव रिलेशन है। One study of 123
supervisor found it resulted in higher level, found uh, in result, it resulted in higher level of commitment to the supervisor, self-efficacy, and perception of justice. It all were related to the OCB. जब लीडर सर्वेंट लीडरशिप एग्जिबिट कर रहा है, उसका स्टाइल ऑफ लीडरशिप सर्वेंट हो, तो फिर जाहिर सी बात है, द फॉलोअर विल बी कमिटेड टू हिम। क्योंकि कमिटमेंट लेवल इसलिए बनता है कि जो लीडर है, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज हर ओन self-interest. Rather, he is more interested in the development of uh, his her followers. So इसीलिए वो commitment of to the supervisor में ज़्यादा होगी, and then the follower will be having high self-efficacy. What we can say, because a leader is putting his weight in their sides, और वो उनके इश्यूज को देखना चाहता है, उसमें ग्रो करना, उनको ग्रो करता हुआ देखना चाहता है, उसकी डेवलपमेंट चाहता है। एंड चूंकि सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट के बजाय वो जो हम LMX में पढ़ रहे थे कि इन ग्रुप आउट ग्रुप इश्यूज बन जाते, वो नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे, तो देन वी कैन से कि द परसेप्शन ऑफ जस्टिस विल बी देयर, एंड ऑल दीज थ्री आर रिलेटेड टू द OCB। और OCB आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ग्रुप, जहाँ पे एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर हो, जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में रिटन चीज़ों से हट के कुछ चीज़ें एक दूसरे को फॉलो करे। इस तरह सर्वेंट लीडरशिप में बी मोर प्रिवेलेंट एंड इफेक्टिव इन सर्टेन कल्चर्स। ये कल्चर डिफरेंसेस भी यहाँ इसमें पाए जाते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी। जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होंगे, वो यहाँ पे सर्वेंट लीडरशिप में नॉट बी दैट मच प्रिवेलेंट एज ऑफ द कलेक्टिविस्ट नेचर। और कलेक्टिविस्ट में भी हॉरिजॉन्टल कलेक्टिविस्ट में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वर्टिकल कलेक्टिविस्ट। So on in the picture, we can have some properties or characteristic of the servant leadership that include the self-awareness, what we have talked about, कंसेप्चुअलाइजेशन, द आइडियाज जनरेशन हो कर सकता है, और एम्पैथी जो हमने कहा था कि वो अपने बजाय दूसरों की सोच रहा है, हीलिंग जो व्हाट वी कैन से कि काउंसलिंग, प्रॉब्लम्स को जब वो फॉलोअर्स के देख लेता है, देन ही स्टार्ट हीलिंग दैट, एंड देन लिसनिंग, careful and active listening, and persuasion as well. And then this leader is also to be there to build the community, and commitment implies growth। और जो कि हम डिफिनेशन में पढ़ चुके थे, क्योंकि फॉलोअर्स की ग्रोथ जो है, followers की development is of utmost importance for the leader, and then foresight, he can anticipate what is going to happen, okay, in the near future, and stewardship, or we can say the hospitality type thing, कि उसको जरा facilitation कर सके अपने followers की। Then comes के जी trust in leader। ट्रस्ट वो चीज है जो कि लीडर को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाती है। व्हाई इज दिस सो? Because it is very important in leadership. Trust gives you the permission to give people direction, because if people is trusting you, then you will be and you are trusting them, then you will be able to give them direction, get everyone aligned. Because if your follower is trusting you, then you will be able to align them with yourself, and they will be also willing to align with you because they trust you, and वो कहेंगे कि ये हमें कभी धोखा नहीं देगा, कभी हमें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। So we will be with our leader and give them the energy to go get the job done, because they trust that at my back leader is there. So if leader is there, I'll do that, no issue. If I face some issue, my leader is there, he will be there to help me and assist me, and mm, will try to get this thing done for me as well. Trust enable you to execute with excellence and produce extraordinary results, because specifically जब transformational leaders की बात हो, जो यहाँ पे चेंज लीडर्स की बात हो, वहां पे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए। हमें स्टेटस को डिसरप्ट करके जब हम आते हैं, लीडर्स आते हैं, तो वो डिसरप्शन के नतीजे में चूंकि हमें अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, वो रूटीन वर्क नहीं चाहिए होता, तो इसीलिए वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स।
and for that trust is a matter of concern. As you execute with excellence and deliver on your commitment, trust becomes easier to inspire, creating a flywheel of performance. ये डॉगलस कॉनन के वो सेइंग्स हैं। वो कहते हैं कि जी जब ये सारी चीजें हो, ट्रस्ट ये सारी चीजें आपको देती हैं कि आप को एनेबल करती है डायरेक्शन देने के लिए, लोगों को अपने साथ अलाइन करने के लिए, लोगों के काम उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि दे कैन डू थिंग्स डन, और ये आपको एक्सेलेंस ला के दे देती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के साथ। ये आपको higher commitments ला के देती है from the follower side. So how this trust is built in a leader, in a person, उसके तीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। दैट इज एबिलिटी, क्या ये बंदा जो है जो लीडर है या whoever he is. फॉर एग्जांपल चूंकि हम लीडरशिप ही स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, सो आवर प्राइम कंसर्न इज लीडर. सो लीडर इज एबल टू डू थिंग्स, जिस इंडस्ट्री में वो है, जिस सेक्टर में है, do this person has that ability of doing that, not only technical ability but now the human skills as well, and conceptual skills as well, and ability as well. The second prime contributor is benevolence, how much he is empathetic toward his followers. जी अब एम्पैथी जो है, ये बेनोवलेंस जो है, वो फॉलोअर्स में ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कराती है। कि ट्रस्टी बंदा वो होता है जो बेनोवलेंस एग्जिबिट करता है, जो कि एम्पैथेटिक होता है टुवर्ड हिज फॉलोअर. And the last thing which is mainly contributing is the integrity. Is this man of his word? If he is a man of his word, he keep his words, then we can trust him. We can, and then ये तीन चीजें होती हैं जो लीडर के पर्सनालिटी में होती है. So लीडर की पर्सनालिटी में ये तीन चीजें हो, so he can be trusted. And the other things which is followers personality, that is trust is propensity. कि जो ट्रस्ट करने वाला है उसमें उसके अंदर जो है वो ट्रस्ट प्रोपेंसिटी कितनी है, वो कितना चाहता है कि वो किसी पे ट्रस्ट करें. बिकॉज सर्टेन पीपल डोंट वांट टू ट्रस्ट समवन. इट इज देयर साइकोलॉजिकल स्टेट कि वो स्केप्टिक होते हैं, सस्पेक्ट होते हैं, वो शक की निगाह से देखते हैं, वो न्यूरोटिक होते हैं, and so many other psychological issues with maybe with that person. So if the truster has a propensity to trust, then the trust will be developed much more, and this trust is converted to the risk taking in relationship by if there is perceived risk. So हमने कहा ना कि चूंकि लीडर तो होता ही वो है जो कि रिस्क ले सके. So रिस्क लेने वाला जो है वो रिस्क टेकिंग जो है वो रिलेशनशिप में, because every relationship is a reciprocal in nature, as social exchange theory is has postulated. So उसमें ये है कि ट्रस्ट जो है वो रिस्क टेकिंग को फिर इंश्योर करती है कि फॉलोअर कैन टेक रिस्क, एंकरिंग ऑन हिज फॉलोअर्स ट्रस्ट, एंड देन दीज टर्न्स टू द आउटकम. कि आउटकम जो है वो इसलिए ज्यादा अच्छे आएंगे कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट की वजह से रिस्क लिया जा सकता है, और वो रिस्क की वजह से हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं. और जब ये रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, सो इट विल अगेन गो थ्रू एंड इट विल इंक्रीज द ट्रस्ट इन द लीडर. जो ट्रस्ट लीडर में जो लीडर पे जो ट्रस्ट किया जा रहा है, if they achieve the outcome, so the leader will become more trustworthy. And then we are discussing the last concept of the leadership, that is mentoring. Who is a mentor? A mentor is a senior employee who sponsor and support a less experienced employee called a protege. Protege is the person जिसे हम आप कह लें कि मिंटी भी कह सकते हैं, और protege स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए. उस मेंटी के लिए क्या कर सकता है? मेंटोर जो होता है वो एक सीनियर पर्सन होता है. ही इज नॉट इन रेगुलर टर्म अ लीडर वन, रादर यहाँ पे इनफॉर्मल साइड लीडरशिप के वो होते हैं कि ये जो उसका मेंटी है
या प्रोजाजे है वो उसके साथ गेट कनेक्टेड होता है, और इट में बी फॉर्मली, यूजुअली इट इज फॉर्मली डन कि जी जूनियर्स को जो है वो सीनियर्स के साथ अटैच किया जाता है कि वो उसके मेंटर बन जाए और ये मिंटी या प्रोजाजे बन जाए। सो करते क्या है, मेंटर जो है वो मेंटोर जो है वो मिंटी को या प्रोजाजे को उसके लिए लॉबिंग करता है कि उसके लिए काम ऐसे ढूंढे, ऐसे विजिबल असाइनमेंट्स उसके लिए हो जिसको करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए, इसकी कैरियर ग्रो कर जाए। And then coaching the protege, the mentee, to help develop his her skills and achieve work objectives. अब उनके लिए काम तो लेके दे दिया, लेकिन अब the issue is how to do this thing, how to get it done. How to get it done के लिए फिर जो है coaching is done by the mentor to the mentee, and providing exposure to influential individual within the organization. ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए होती है कि आपको एक्सपोजर दिया जाए जो सीनियर्स हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास किसी किस्म का भी पावर है, रेफरेंट पावर है, प्रेसिव पावर है, लेजिटिमेट पावर है, जिनके पास उनके साथ एक्सपोजर हो, सो द प्रोजेक्ट कैन हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे हम मेंटी भी कहते हैं। Protecting the protege from possible risk to his her reputation, उसे अपने reputation building के लिए भी, image building के तरीके भी वो सिखाता रहता है। और then sponsoring to the higher cadres, ठीक है जी, जब वो कहता है कि काम किया इसने, काम लेके दिया, काम इसने करके दिखा दिया, उसका एक्सपोजर हुआ, कॉन्फिडेंस उसे मिला, उसने फिर देखे look at this person at my minty, he is able to do at a high level position, things at a high level position. So then he's trying to get him progress in his career, and acting as a sounding board for ideas that Rajaji might be hesitant to share with a direct supervisor. Sometimes the employees are hesitant to apply to discuss the new ideas because of the certain rules, regulation, the perceived fear from the subordinate, and the subordinate in the super pursued fear of the supervisor and the supervisor and supervisee relationship. So उसमें से फिर ये मेंटोर जो होता है वो ट्राई हिमसेल्फ कि जी उसको सुने पहले, इसके आइडिया को, उसके आइडिया को इट्स नीड रिफाइनमेंट, उसको रिफाइन करके फिर आगे उसको प्रेजेंट करने के लिए बोले। साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या कहते हैं, काउंसलिंग द प्रोजेक्ट टू बूस्ट हिज हर सेल्फ इंटरेस्ट, उसके सेल्फ इंटरेस्ट को सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट करने की कोशिश करता है। एंड देन शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद प्रोजेक्ट, जो मिंटी होता है उसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है कि व्हेन आई वाज इन अ ट्रबल, I was in a difficult situation, I was given a difficult task, so how I have done at that time. So you are also going to not frightened by anything, आपने किसी चीज से डरना नहीं है, if things happen, और इसको आपने डील करना है। प्रोवाइडिंग फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस, ये एक बड़ी वो है कि न्यू कमर है या जूनियर है, वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, उसको कोई कलीगियल रिलेशनशिप जो है वो वहाँ पे नहीं है, कलीग नहीं है, तो जो मेंटोर होता है उसका फ्रेंड भी बनता है और उसके लिए कोशिश करता है कि उसकी जो सारी बातें वो उसे शेयर कर सके। जैसे हम कहते हैं कि जो लिसनिंग है, listening a person is also healing half of the issue, and acting as a role model, उसे बताता है look at me, I have been doing like that, so do like that, so you will be progress in your career. So mentoring is a very uh, very beneficial phenomenon, and it shall be adopted in our organization. Unfortunately, third world countries में यह बड़ा issue है कि यहाँ पे mentoring और coaching के concepts बड़े weak है, अगर है भी तो mostly नहीं होते. So mentoring is of one of the key important, जहाँ पे possibly हमारे जो employees हैं they may excel because of this mentoring. सारे issues जो हैं वो फॉर्मल रूल्स के जरिए नहीं होते, फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए नहीं होते, सो देन वी नीड्स द इनफॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल वेज to manage our employees and to let them grow. So
what are the implications of these all although कि हम हर एक लीडरशिप थ्योरी के साथ उसके implication भी स्टडी कर चुके हैं but overall क्या है? For maximum leadership effectiveness, ensure that your preferences on the initiating structure and consideration dimensions are a match for your work dynamics in culture. हमने हमारे स्टार्ट में बात की तो हमारे पास यही दो बड़ी डायमेंशंस आई थी कि जिसे हम पीपल ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन कहते हैं या टास्क ओरिएंटेड इनिशिएटिंग टास्क या टास्क ओरिएंटेशन भी कहते हैं, कंसिडरेशन भी कहते हैं कि लीडर में मुझ में एज अ लीडर क्या वो जो 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 मिक्स है टास्क ओरिएंटेशन का और पीपल ओरिएंटेशन का, क्या वो मैच करता है उस पोजीशन के साथ, उस इंडस्ट्री के साथ, उस सेक्टर के साथ, उस डिपार्टमेंट के साथ जिसको मैं लीड कर रहा हूँ. सो दिस इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस कि किस क्या वो मैच है. देयर इज अ मैच, देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन, आर वी ऑन द सेम पेज. ठीक है जी. जहाँ पे क्योंकि अगर प्रोडक्शन कंसर्न है, पीपल ओरिएंटेशन नहीं है, देन और जो जो जॉब है वहाँ पे पीपल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीपल ओरिएंटेशन, then there will be a mismatch and the leader will not be effective and efficient. Then in hiring, we have to hire those people who have some sort of transformational leadership qualities and who have demonstrated success in working through others to meet a long term vision. उनके मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस को देखना चाहिए कि उन्होंने टीम मैनेज किए हैं, ग्रुप मैनेज किए हैं. So what was their experience there? Because if we want that person, so if we didn't want to hire him for a year or two, we want to hire that person for long term. So हमें ऐसे लोग चाहिए जो ग्रुप को चला सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, उनसे से ज्यादा अच्छे तरीके से काम ले सके. So that can be done at the time of hiring, जहाँ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं. वहाँ पे हमें बताया जो बिग 5 मॉडल है या MBTI है, वहाँ से हमें पता लग सकता है कि जी which person has leadership readiness, कितना रेडी है एक बंदा जिसमें उसमें एबिलिटी है कि वो लीड कर सकता है, उसमें कितना पोटेंशियल है लीड करने के लिए. And then hire candidates whom you believe are ethical and trustworthy for management roles, and train current managers in your organization ethical standards in order to increase leadership effectiveness. अगर हम एथिकलिटी को कंसिडर ना करें, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, trustworthiness को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, then there will be issues in our management. और ये मैनेजमेंट हमारे यहाँ नहीं होते, दुनिया के द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं. एनरॉन स्कैंडल जो है वो इस वजह से नहीं हुआ कि वो जो टॉप लीडरशिप थी वो अनएथिकल थी, वो ट्रस्टवर्थी नहीं थी, जिसकी वजह से दुनिया का बहुत बड़ा जो जितने भी बड़े आप फाइनेंशियल स्कीम्स ले लें, उसमें से इशू ये है कि जो उसको लीड करने वाले थे वो एथिकल और ट्रस्टवर्थी नहीं थे, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने वाले नहीं थे. सो दैट्स इज नीड ऑफ आर need of corporate world, need of any organization, that its leader shall be ethical and trustworthy. And same as those who are in managerial positions, जो कि किसी न किसी सूरत में टीम्स को लीड कर रहे हैं, उनको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल स्टैंडर्ड्स और जो एथिक्स है उनको कंप्लाई करना चाहिए. सीक टू डेवलप अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स. ठीक है जी. जहाँ पे फॉलोअर्स अपने इश्यूज बता सकें, जहाँ पे फॉलोअर्स फील एट ईज या फील एट होम करे जब वो अपने लीडर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, जब वो इंटरेक्ट कर रहे हो. Because if this is not happen, as organization have become less stable and predictable, strong board of trust are replacing bureaucratic rules, defining expectation and relationship. अगर trusting relationship नहीं बनाए गए, न बनाए हमने, उनको develop नहीं कराया हमने, then there will be bureaucratic rules, formal lines only. फॉर्मल लाइंस में फिर एम्पैथी नहीं आती, वहां पे मोटिवेशन डिफिकल्ट हो जाती है, because so much formality kills the innovation, creativity, empathy, and all those stuff. So we need to develop the trusting relationship with the followers, and then consider investing in leadership, because leader shall be a learning person, always a learning person. So वो जो ऑलरेडी लीडिंग पोजीशन में है उन पे को भी ट्रेनिंग कराने, फॉर्मल कोर्सेज भी, वर्कशॉप्स भी, मेंटोरिंग भी,
और जो पॉसिबल लीडरशिप कैंडिडेट्स हैं कल के लिए, परसों के लिए, 5 साल बाद के लिए, 10 साल बाद के लिए, उनके लिए भी वर्कशॉप और सीरीज ऑफ कोर्सेज रखे जाएं, कुछ सेमिनार वर्कशॉप्स रखी जाएं और उनको मेंटोरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए हायर अप्स के साथ, ताकि हमें कल को जो रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़े, सक्सेशन प्लानिंग के बाद जो बंदे को आगे लेकर आना है, सो दैट पर्सन may have all the prerequisite leadership qualities along with ethicality as well, and trustworthy, no doubt. Okay, so these were all about the leadership. In this series, we have discussed the concepts and implication of leadership, how leadership, concept of leadership is evolved, what leadership is. उसके बाद हमने जो इनिशियल या जो ट्रेड थीरीज थी वो पढ़ी, फिर इसके बाद बिहेवियरल अप्रोचेस पे हम आए, उसके बाद कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस पे, और आखिर में हमने रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप के थ्योरीज पे डिस्कशन किया और उसके इम्प्लीकेशन भी डिस्कस किए। उसके साथ साथ दो मेजर चीज़ों पे भी हमने बात की, which is trust in leadership or mentoring as well. Mentoring is, again, I'm emphasizing on that, कि हमारे जो third world country में it is a much more importance. So that was all from the today's lecture, और इसके साथ ही हमारे जो lecture leadership जो हमारे lecture series था वो अख्ताम को पहुंचता है। Thank you and Allah Hafiz.